تو عزیزو پیدائش کی کتاب میں ٹائم گزارنا اس لیے ہے تاکہ آپ کی آخرت سیدھی ہو جائے. کسی چیز کو جب آپ سیکھتے ہیں تو اس کو بنیاد سے سیکھتے ہیں. اے گھر جتھے تسی بیٹھے ہوئے ایری پہلا بنیاد بنی تو پھر کھلوتا ہے. بنیاد نہ ہوتی تو یہ گر جاتا. تو اسی طرح اگر آپ ایمان میں آپ کی بنیاد نہیں ہے تو آپ کا ایمان بے فائدہ ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم اسی لیے تو متی 7 باب میں لکھا ہے کہ بہت تیرے کہیں گے اے خداوند ہم نے تیرے نام سے معجزے بھی کیے, ہم نے تیرے نام سے بدروہوں کو نکالا, ہم نے تیرے نام سے ایون مردے بھی زندہ کیے. وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں جانتا ہی نہیں. کتنی بڑی بات ہے. اس پہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے کہ یہ بہت ہی بڑی بات ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ خدام ہے, یہ خاتم, یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. ایک عام کلیسیا کے اندر جو نیچے سننے والے لوگ ہیں یہ وہ نہیں ہے, بلکہ یہ کلیسیا کے وہ ممبر ہیں جو کلیسیا کو کلام سکھاتے ہیں. ایک بڑا ہائی کیلرجی کے لوگ ہیں. خدا ان سے کہہ رہا ہے میں آپ کو نہیں جانتا. کیوں؟ کیونکہ جس طرح خداوند کی مرضی پوری کرنی ہے ہمیں اسی طرح کرنی چاہیے جس طرح اس نے ہمیں بتایا ہے. تو پیدائش 3 باب پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں. آج لاسٹ ایپیسوڈ ہے اور آج ہے اس کا 8واں حصہ. ہمیشہ کی طرح ہم اپنی مرکزی آیت سے شروع کریں گے. اور مرکزی آیت کوئی بتا سکتا ہے کون سی ہے؟ آپ چپ رہے ہیں جی. پیدائش کیا 49 کیا جینیسس, یہ تو بک کا نام ہوگا. 49 کیا ہوتا ہے؟ چیپٹر, باب ہو گیا. اور آیت ہم سب پہلے نکالیں گے پھر اس کے بعد پڑھیں گے. پیدائش کی کتاب اس کا 49واں باب اور اس کی پہلی آیت. اور یہ آیت مقدسہ ہم اندریاس بھائی کے ساتھ مل کر پڑھیں گے. پیدائش کی کتاب اس کا 49واں باب اور اس کی پہلی آیت. بس پہلی ہے جی محبت میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلام. کلام خدا میں پیدائش کی کتاب 49 چیپٹر 49 اور اس کی پہلی آیت. کلام خدا میں کچھ یوں مرحوم ہے. اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ کہہ کر بلوایا کہ تم سب جمع ہو جاؤ تاکہ میں تم کو بتاؤں کہ آخری دنوں میں تم پر کیا گزرے گی. کیا گزرے گا. آمین. کلام خدا کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو. خدا کا شکر ہو. آمین. اور اندریاس بھائی کے لیے ایک بار زوردار کریں. عزیزو اس لیے کیونکہ یہ وہ کلام ہے جو اس کائنات میں صرف آپ کو بخشا گیا ہے اور یہ آپ نے زندہ خدا کو پڑھا ہے. وہ مبارک ہے انہوں نے پڑھا ہے, ہم مبارک ہیں ہم نے سنا ہے. ورنہ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا کرتے پھرتے ہیں. تو آپ لوگ مبارک ہے کہ آپ نے وہ کلام پڑھا ہے جو اس کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے. صرف خدا نے آپ پر یہ بھید کھولا ہے. وہ چھوٹوں کو اپنا کلام دیتا ہے. ہاللیلویا. تو خدا کہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو بتاؤں گا کہ آخری دنوں پر ان پر کیا بیتے گی. ہم یہ شروع سے سیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارا زندہ خدا ہمیں شروع ہی سے انجام کی خبر دیتا ہے, ہمیں شروع ہی سے آخرت کی خبر دیتا ہے. پیدائش کی کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں شروع ہی سے مکاشفہ کی کتاب کی آیتیں دیتی ہے, ہمیں شروع ہی سے یسایا کی کتاب کی آیتیں دیتی ہے, ہمیں شروع ہی سے پیدائش میں ہمیں آج کا بتاتی ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے. پیدائش یعنی شروع ہی سے ہمیں بتا رہی ہے قیامت میں کیا ہوگا. پیدائش ہی سے شروع میں بتا رہی ہے کہ یسوع مسیح جب آئے گا تب کیا ہوگا. پیدائش ہی میں بتا رہی ہے کہ جب یسوع مسیح آ کر 1000 سال بادشاہی کر کے چلا جائے گا آسمان پر کیا ہوگا. اگر آپ نے پیدائش کی کتاب کو سمجھ لیا 65 کتابیں آپ کے آگے کچھ بھی نہیں. 65 کتابیں آپ کے آگے کچھ بھی نہیں اگر آپ نے اس کتاب کو سمجھ لیا. تو گزشتہ ہم جب کلام خدا سیکھتے جا رہے ایسا بھی وقت گزرا کہ پہلے باب میں دوسرے باب میں 6-7 گھنٹے کی ایک باب کے اندر 6 سے 7 گھنٹے کی سٹڈی. ہم اس کو 5 منٹ میں پڑھ کے نکل جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے. میں نے ان سے وعدہ کیا تھا یہ سٹڈی شروع کرنے سے پہلے آپ سے 2 مہینے پہلے کہ پہلا باب آپ کب تک پڑھ لیں گے. انہوں نے کہا ہم 5 منٹ میں پڑھ لیں گے. تو میں نے کہا خدا کو حاضر اور ناظر جان کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ کو 5 گھنٹے کی سٹڈی دوں گا ایک ہی باب کے اوپر. ایک ہی بات کے اوپر 5 گھنٹے کی سٹڈی. اور مجھے نہیں نہ پتا یہ کیسے ہوگا, نہ میرا وہ پلان تھا. جب آپ لوگوں کی ہوتی ہے عبادت اس سے 1-2 گھنٹہ پہلے میں بیٹھتا ہوں. تو جو بھی خداوند نے دیا ہوتا ہے اس کو ہم کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بولا 5 کا تھا ہو 7 گھنٹہ 7 گھنٹے کی سٹڈی ہوگی.
तो आप सोचें कि ये पैदाइश की किताब है कि लफ्ज एक नुक्ते में पूरी पूरी दुनिया पाई जाती है, खजाने इसके अंदर। अभी हमने ज़बूर गाया ना, जवान भला किस तरह तेरे कलाम में नहीं, जैसे वो दूसरा लफ्ज कहता है, दूसरा जुमला कहता है ना, जैसे खजाना मिला, उससे पहले क्या कहते हैं? तेरे कलाम तो हुन ऐसा मैं खुश हाँ जैसे खजाना मिला। दुआ में भी हारिस भाई ने खूब गाया कि हजारों सोने के चांदी सिक्कों से भी ज्यादा कीमती है। तेरे कलाम तो हुन ऐसा मैं खुश हाँ कि जैसे खजाना मिला। खजाने जब मिलते हैं तो लोगों अजीजों खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। एक हटा दे तो आप सोचें कि बूंद ही टेक, तो जब खजाने मिलते हैं तो खुशी की इंतहा नहीं होती। तो आप सोचें कि जब आपको ये कलाम खुदा मिला है तो ये तो तहरीरी खुदा आपके पास आ गया। जब चाहे खुदा से बातें करें, आप अपने खुदा से 24 घंटे बात कर सकते हैं। साढ़े को सिर्फ टाइम होना चाहिए, किरे को साढ़े को ना, वो तो हमारे लिए तैयार है। तो आज मैं आयत मुकद्दस आपके सामने खुद पढ़े थे, तो इस पैसेज को तीसरे बाब को जब हम पढ़ने को है तो छठी आयत से, तीसरा बाब उसकी छठी आयत से हम पढ़ते चले जाएंगे, सुनते जाइएगा, क्योंकि इनमें से काफी चीजें हमने कवर करनी है और आखिर में हम लोग रुकेंगे, लेकिन यहाँ से हम अपना थोड़ा बेस बनाएंगे। तीसरा बाब पैदाइश की किताब और उसकी छठी आयत से मैं पढ़ूंगा, आप लोगों ने गौर से सुनना है। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने इंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। अब यहां पर हम ठहरते हैं। अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए क्या बनाई? लुंगियां। पत्तों से क्या ड्रेस बन सकता है? उस वक्त ना इस चीज को बनाने की अकल थी, ना ये पता था कि हमने अपने जिस्म को ढकना है। अच्छा, सिया किससे होगा? आपने पढ़ा ना, पत्तों को सीकर। पत्ते तो जब नजर आ गए भाई अंजीर का दरख्त है, और अंजीर के दरख्त से पत्ते ले लिए, तो सिया किससे होगा? बाइबल बता रही है सी कर, सुई तो आई। चले सुई को छोड़ दे, बंदा सुराख हाथों से भी कर सकता है, तो सिया किससे होगा? वो खजूर का अपने खजूर की जब क्रोस हम बनाते हैं तो हम इसमें वो पतली पतली वो निकाल कर उसी से बांधते हैं, वो लाइन धागे की तरह उसको यूज करते हैं। जड़ों से, बेल से, पत्तों, खजूर की डालियों से। अच्छा है, और कोई? अच्छा, जिंदे साडे प्लान ने साडा अब्बा ही वो सोच लो ना, यही दिमाग चल रहा है प्यो ही सी ना साडा, और दिमाग चल रहा है करो गीता में आई सी। ज्यादातर जब आप इंसाइक्लोपीडिया में देखते हैं या स्कॉलर्स को आप सुनते हैं या ज्यूइश कुतुब को आप पढ़ते हैं, तो वहां पर ज्यादातर बेल का जिक्र है। बेल के साथ उन्होंने पत्तों को सिया, जड़ भी कह सकते हैं आप, पता नहीं है, आप लगा सकते हैं, सारे फिट बैठेंगे। पत्तों को भी सी सकते, पत्ते भी कुछ लंबे लंबे होते हैं। तो कहने का मकसद ये हो ना, कोई ना कोई जुगाड़ करके अपना सेटअप कर रहे, लेकिन पत्तों से जिस्म ढक नहीं सकता। हमने लास्ट टाइम सीखा कि अपने हाथ से आप कुछ भी, अपनी दी हुई तालीम से आप बच नहीं सकते। इंसानी तालीम क्या है? शैतानी तालीम। 100 से ज्यादा पॉइंट हम सीख चुके। उसने अपने ही अंदाज से एक लिबास दिया। अब लुंगियां जो बनाई हमारे बाप आदम और हवा ने, तो हम देखते हैं, मेरे साथ देखिएगा 20वीं आयत और 21वीं आयत में क्या लिखा है। 20वीं आयत में लिखा है, और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा इसलिए कि वो सब जिंदाओं की। हमेशा याद रखिएगा, हवा का नाम भी हमारे बाप आदम ने रखा, और ये गुनाह के बाद रखा। फिर ये गुनाह के बाद रखा गया इसका नाम, जिंदाओं की मां। आदम का मतलब क्या है?
आप आसानी तरीके से समझ सकते हैं। आदम का मतलब है जिंदा, जितने भी जिंदा लोग ने। हवा का मतलब है जिंदाओं की मां। आदम का आम लफ्जों में जब आप देखते हैं इब्रानी जुबान में आदमा मीन्स के लाल मिट्टी से बना हुआ, लेकिन जब आप उर्दू लैंग्वेज में आदम देखते हैं तो इसका मतलब है लोग, अहले जुबान, अहले उम्मत, यानी जितने भी ग्रोह हैं, जिंदा जितने जिंदा लोग हैं, और इन जिंदाओं की माँ का नाम क्या है? हवा। 21वीं आयत में लिखा है खुदावंद खुदा। अब यहाँ पर लिखा है खुदावंद खुदा, तो इब्रानी में यहाँ क्या होना चाहिए? याहवे एलोहिम, यहोवा एलोहिम, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। आगे लिखा है और खुदावंद खुदा ने यानी याहवे एलोहिम ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाया। कौन से कुर्ते बनाकर? चमड़े। उधर लुंगियां, इधर किने? चमड़े। उधर की लुंगियां और इधर क्या है? कुर्ते। लुंगियां किस चीज की बनी थी? पत्तों की। कुर्ते किस चीज का बना है? चमड़े का। लुंगियों में पत्ते इस्तेमाल हुए, तो पत्ते कहां से हासिल हुए? दरख्त से। यहाँ पर कुर्ते बने चमड़े के, तो चमड़ा कहां से लिया गया? किसी ना किसी को चीरा गया, किसी ना किसी को चीरा गया। तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं पैदाइश की किताब 3रा बाब, तो आप जरिए मुकाशफा की किताब और उसके 5वें बाब के अंदर में लिखा है, सुनिएगा, अजल से ज़िबा किया हुआ बर्रा। कब से? अजल से ज़िबा किया हुआ बर्रा। आपका खुदा को पैदाइश में पढ़ोगे तो आपको इसकी, सॉरी, मुकाशफा में पढ़ोगे तो आपको उसकी तशरीह जो है पैदाइश में मिलेगी। कई मैंने स्कॉलर्स ऐसे देखे, कई पादरी ऐसे देखे, वो कहते हैं नया अहदनामा पुराने अहदनामे की तफसीर है। मैं आपको गारंटी देकर कहता हूं नए अहदनामे की तफसीर जो है वो पहला पुराना अहदनामा है, और 22 में 39 किताबें, उसमें आप छोटी सी 27 किताबें पढ़ के तो आप हीरो बन जाते हैं। ये 2 होंठ है, न्यू टेस्टमेंट है, ओल्ड टेस्टमेंट, 2 होंठ है। अगर आपने एक होंठ नहीं पढ़ा पुराना और आप नए को लेकर घूम रहे तो एक होंठ ना बोले नहीं जाता। जब तक आप दोनों को नहीं पढ़ेंगे आप इस कलाम खुदा को समझ नहीं सकते। मैं ऐसे पासवानों को जानता हूं, लास्ट टाइम हम लोग गए हुए थे अमीर ज़ादे, मैंने उस बंदे की पूरी कुंडली निकाली, मैं देख के हैरान हो गया। जिस बंदे की 4 लाख सैलरी हो वो कैसे छोड़ के एक नया सेटअप लगा सकता है? कार मिली हो, न्यू ब्रांड, रिश्तेदारी हो, ऐसा होता है अजीजों। ये पैसा एक है ही ऐसी चीज कि आप नहीं समझते इस चीज को। वो हमारा भाई जब मैसेज सुनाता है तो वो लैपटॉप से सुनाता है। उनसे पहले 2-3 दिन की उनकी काबिश होती है कि मैं बड़े बड़े स्कॉलर्स को सुनूं, तो फिर जो उसमें से, क्योंकि उनके पास वो बरकत नहीं है। और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि उन्होंने अपने मुंह से एक्सेप्ट किया है कि पास साहब ऐसा ऐसा हमारा सिलसिला है। डायरेक्ट मुझसे बात नहीं, इनडायरेक्टली बात कर रहा हूँ कि मेरे पास ये नहीं। आप जानते हैं कि वो जिंदा खुदा के बड़े सूरमा है, हमदो सना में, तो बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे जो इस तरह की हमदो सना करते हैं, लेकिन वो अपने मुंह से एक्सेप्ट करते हैं कि मेरा ये सेटअप नहीं है और हमें इस चीज की तलाश भी है और हमें खुदा के रूह की भी तलाश है कि हमें हिकमत और इल्मियत मिले। खैर, कहने का ये मकसद है, ये कलाम हर किसी को नहीं आता। कितना पैसा है, किस काम का? नेट भरा पड़ा है खादमों से, किस काम का? फिर भी आप इस तरह कर रहे होते कि जैसे न्यूज पढ़ रहे हैं और देख देख के आपको पढ़ना पड़ रहा है। ये भेद ऐसे नहीं किसी पे खुल जाते। आप लोग कुछ नसीब है कि जिनके ऊपर ये खजाने से भी बदतर भेद खुले हुए हैं। सोने चांदी के सिक्कों से भी ज्यादा कीमती कलाम आपके पास है। आपके जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। हम तो एलानिया कहते हैं कि हमारे पास जो है इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। ना एक नुक्ता बढ़ाओ ना एक नुक्ता घटाओ। तो यहां पर लिखा है खुदा ने अपना असली बेटा कुर्बान के तमसीलन हमें पहली पेशन को यीशु मसीह किया नजर आ जाती है। तो यहां पर जब आप देखते हैं कि बेटा कुर्बान हुआ, इसको हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे डिटेल के अंदर कि ये बेटा कैसे कुर्बान हुआ। लेकिन यहां पर एक और चीज नोट करने वाली है। तो मोतियस के खत में लिखा है, ये आप पैदाइश पढ़ रहे हैं, अंजाम की खबर आप देखें, आज भी ये अप्लाई होता है। खुदा ने हवा और आदम के लिए कुर्ते बनाए या स्किन फिटिंग बनाए, कुर्ते या ऐसी ख्वादमा बनाई है कि जो ये शॉर्ट स्कर्ट पहन के, तो भाई वो तो यूरोप की है।
کہہ دیتے ہیں دیکھیں جی پولوس رسول تو فیسٹیول کی بات کر رہا ہے، الگ الگ کلچر کی بات کر رہا ہے اور الگ الگ زبانوں اور ممالک کی بات کر رہا ہے، یہاں پہ یہ وہاں نہیں اپلائی ہوتا، ان کا تو کلچر ہے. اور بھائی کلچر ان کا بڑا ہے، خدا کا کلام بڑا ہے. شارٹ سکرٹ کیا خدا نے بنا کے دیا ہوا کو. ہمارے ایسے بہن بھائی ہیں باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں خود 3 پیس پہننا شروع کر دیتے ہیں، بیویاں نے کپڑے کاٹو یا اچھا ہوتی ادھر سے ہی ہے، وہ سب جانتے ہیں ان کو کون ہے، لیکن آپ کی کیا زندگی ہے. پھر کہہ رہے تھے ہمیں روح القدس کا بپتسمہ ہوا، ہمیں پاکرو ملا ہے، نہ ان کو پاکرو کا پتا، نہ ان کو یہ بھی پتا کہ ملا کب ہے اور کیسے ملتا ہے، اور نہ ان میں ہوتا ہے کہ کیڑا پاک ہوئے جن نے آگے تیرے کپڑے ہی پاڑ چھڑے لیتے. کپڑے اد ننگا انسان کیسے ہو جاتا ہے. ہسبینڈ صاحب کا 3 پیس ہے یہاں تک، خادموں والی کٹ، صرف پیر کلائی فیس نظر آنا چاہیے. جب سردار قائم کا دیکھتے نا ڈریس، یسوع مسیح نے خدا نے اپنے اس پیدائش 3 بات کے مطابق وہ ڈریس بنوایا تھا. آپ جو آج انڈر ویئر پہنتے ہیں، انڈر گارمنٹس پہنتے ہیں، یہ بائبل کا حصہ ہے. کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو نیا ہے. آپ جو نیچے سینڈو پہنتے ہیں، یہ بائبل کا حصہ ہے. اگر میرے اتنے ادننگا ہوتے نا اتنے میرے کو لائیں حیادار لباس. تموکس کے خط میں لکھا ہے کیا لباس؟ حیادار. آپ عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں حیادار لباس. کرتے کسی ٹیلر کے پاس جائیں، بائبل میں لکھا ہے نا کہ دا کارنر سٹون یسوع مسیح وہ کونے کے سرے کا پتھر ہے جس کو مماروں نے رد کر دیا، بٹ وہی کونے کا سرے کا پتھر ٹھہرایا. اور یہ پرانے ہندو میں بہت ساری دیکھتے پیشن گوئیاں تھی. مجھے یہ سمجھ نہیں تھی آ رہی، ہمارا جب یہ گھر بنا تو میں نے مستری سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ کیا ہوتا ہے؟ یا آپ بھی کسی مستری سے پوچھے گا کہ یہ کونے کے سر کا پتھر کیا ہوتا ہے. کسی کسان سے جا کے پوچھے گا، کیڑا کسان ہے تو اینج سٹتا ہے تو راہ کے کنارے ڈگ رہا ہے تے سڑک تے ڈگ رہا ہے تے جھاڑیاں بھی ڈگ رہا ہے. کسان کا اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے، ایک دانہ، ہزاروں ہوتے ہیں، کتنے ہزاروں ہوتے ہیں، ایک دانہ بھی اس جگہ سے ادھر نہیں جا سکتا جہاں پر اس نے دیکھا ہے. کبھی کسانوں سے پوچھیے گا. یہ خداوند نے صرف تمثیل آپ کو بتائی. اب جب آپ مستری سے پوچھیں گے بولیں گے یہ کیا ہے کونے کے سر کا پتھر، کیا مطلب ہے؟ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا جب کوئی عمارت یا گھر بن رہا ہوتا ہے تو ایک بلاگ ہوتا ہے کونے پہ اور اسے لاٹو رکھا جاتا ہے. اس لاٹو کے اوپر ہی سارا سسٹم چل رہا ہوتا ہے اور اس پتھر کے اوپر مینس کہ یہ گھر ہے، اس گھر کے کونے کے نیچے ایک پتھر تھا جہاں سے کام شروع ہوا، وہ نکال دیں یہ پوری بلڈنگ نیچے گر جائے. آپ کے میرے ایمان کی بنیاد خدا کا بیٹا یسوع ہے. اب یسوع نے ہمارے لیے کیا ایڈوائس کی کہ کرتے، اسی طرح ٹیلر سے پوچھے گا. ٹیلر کے پاس جاتے ہیں، درجی کو کبھی پوچھے گا پاری کرتے کنوں کے لئے. آپ کو کرتے کی ڈیفینیشن پتا ہے؟ اب بڑی آسان ہے، دیکھے تو ہوں گے کیسے ہوتے ہیں. لانگ ہوتے ہیں اور کھلے ہوتے ہیں اور پیروں سے بھی نیچے ہوتے، پیر صرف نظر آ رہے تھے، فل آستین ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں خدا آپ کو پیدائش ہی سے انجام کی خبر دے رہا ہے. خدا آپ کو پیدائش ہی سے انجام کی خبر دے رہا ہے. وہ کچھ سکن فٹنگ کپڑے نہیں کہہ رہا پہنو. آج آپ نے دیکھا ہے اکثر جم جو ہے، جم میں کرتا رہا ہوں، اسٹیفن بھائی بھی کرتے رہے، ابھی ہمارے بھائی کر رہے. آپ کو پتا ہے یہ جم جو ہے یہ شیطان کا بہت بڑا ایک ہتھیار ہے. آپ کہیں گے یہ تو فٹنس کا راز ہے، یہ فٹنس نہیں ہے. جتنے بھی جمر آپ دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی ایکوبیٹس آپ دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی آپ ایتھلیٹس دیکھ رہے ہیں جن کا جم سے واسطہ پڑتا ہے، کپڑے ضرور لان گے. اے بھائی نے تو ڈی پی پہ لگائی ہو دن کوڈی یہ تھے نکلن دیے اینا کو پیٹ چکے تھے شرما رہے ہیں تو ڈی پی پہ دیکھو شرٹ لا کے پوزنگ کی تھی. آپ کو پتہ ہے یہ سائیکو یہ بیماری ہوتی ہے. آپ جتنے بھی جمر دیکھ لو، جتنے بھی ایتھلیٹس دیکھ لو، اور بھی یہ نہیں کہ صرف جم والے، اس کے ساتھ جو دوسرے سے پجانا لے رہے وہ بھی جم جاتے ہیں، سوئمر میں وہ بھی جم جاتے ہیں، اسکواش کھیلتے ہیں وہ بھی جم جاتے ہیں. لیکن آپ وہ ان کو دیکھ لیں، ان کی ایک عادت ہوتی ہے. فٹ بالرز کو دیکھ لیں وہ کپڑے اتار دیتے ہیں. لڑکیوں کو دیکھ لیں، یہ خدا کے ساتھ ہے، خدا کے خلاف ہے. اور یہ دیا کس نے؟ یہ کس نے دیا؟ میک اپ کس نے دیا؟ ایسی بہت ساری اور ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں ان کو کبھی سیکھیں گے جب پیدائش 5 باب میں آئیں گے ہنوک پر، تو تب آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی. ان کا سائیڈ افیکٹ کیا ہے، ان کا تعلق آپ کی روح سے. میک اپ لفظ ہے،
मेकअप लफ्ज का क्या मतलब है? मेक अप, अपने आप को मेक करना, नहीं, अपग्रेडेशन, अपग्रेड करना। तो खुदा ने अपग्रेड किया वो थोड़ा है। एक मेक हुआ है उसके ऊपर अप कर लो, एक ऊपर एक और चीज बना लो, तो फिर पार्लर वाला नहीं बुद्धा पादरी है दूसरे दिन कुड़ी ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ है। मेकअप लड़के करते हैं भाई, एक से एक मेकअप किया होता है। आज आप देखें ना, अभी रिसेंट शादी आएंगी, आप देखिएगा लड़कों को, दूल्हे को देखें, दूल्हे के भाइयों को देखें, मर्द जरा बड़ा मेकअप करता है। ये हटा लें। तो आप जब देखेंगे ये सारी चीजों को हम जानेंगे ये क्या है। अच्छा खैर, करना है तो अपने लिए करें, लेकिन मैंने अब तक कोई ऐसा जिम वाला देखा ही नहीं जो अपने लिए करता हो, वो दूसरों को दिखाने के लिए करता। खैर आगे जब आप देखते हैं, अच्छा हमारी खुद ऐसी आदत, यहां कभी बाहर नहीं आया रहे कार मान दे लेकिन नंगे जरूर होने। अच्छा आगे जब आप देखते हैं तो चमड़े के कुर्ते, यहां पर हमें हयादार लिबास का एक पॉइंट मिलता है। खुदा हमें अल एलानिया व बंगे दोहल सरेआम बता रहा है कि आपने ऐसे कपड़े पहने जो हयादार है। जरूरी नहीं होते उन कुर्ते कह रहे कुर्ते लाभ के लिए, मीन्स कि आपके कपड़े ऐसे हो, आपकी हया हो, आपके हयादार हो, देख के कोई आपको ये ना कहे कि कलाम नु छड़ो इन देखो। खासकर हमारी फीमेल्स बहन भाइयों पे ये बड़ी बात आती है, और ये इसमें कोई शक भी नहीं, क्योंकि मैं ऐसे रोमन कैथोलिक एक फादर को जानता हूं कि जब इशा रवानी के लेने के लिए आए लड़के, उन्होंने कहा साइड पे नहीं देनी। अच्छा कैथोलिक में ऐसा होता नहीं है। फिर एक लड़की आई साइड पे नहीं देनी, हुआ क्या, एक लड़की आई शॉर्ट स्लीव पहनी, उसने कहा साइड पे नहीं देनी। एक आई नाखून बड़े, उसने बोला साइड पे नहीं देनी। एक आई मेकअप किया, उसने साइड पे नहीं देनी। एक आई उसने आंखें बनाई, साइड पे नहीं देनी। यही फरवरी का टाइम था, मैं आपको 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तब भी लोगों में इतनी अकल थी। वैलेंटाइन डे के दिन चले गए, एक आई फूल लेके फादर आप मुझे बहुत पसंद, तू भी साइड पे, तू भी नहीं चाहिए। और वो जवान पादरी था, जवान फादर था, फादर रोनाल्ड, आप लोग मेरे जानते होंगे, मिनार्ड ऐसे करके कुछ नाम था, पंजाब का था, नहायत ही खूबसूरत लड़का था वो। तो आप देखें कि फादर मिनार्ड उनका नाम था, तो उनमें भी इतनी अकल पाई जाती है। आज जो आप देखते हैं ना, अगर सरेआम वो बोलते हैं कि महीने के शयातीन दिन आते हैं, हफ्ते शयातीन के नामों पे जनवरी फरवरी या संडे मंडे जो, आज जो रोमन कैथोलिक ये बोलती है, उनमें पंजाब के जो खुदाम है वो ये बताते हैं, गोइंस थोड़ी बताते हैं आपको, या गोरे जो गोरे तो खैर आते ही नहीं थे, गोइंस ज्यादातर जो आती उर्दू भी समझते थे, वो नहीं बताएंगे कभी आप। जो पंजाब में नई भर्ती शुरू हुई थी आज से 20 साल पहले, वो आपको बताती है, चुपके चुपके से बता देते हैं कि भाई ये। तो आप देखें कि कैसे जिंदा खुदा आपको बता रहा है कि ये चीजें सही नहीं है। कुर्ते, कुर्ते का मतलब ये नहीं कि आज आप सब कुर्ते से जाओ जो कुर्ते ले, इसके हयादार आप पहने, आपका लिबास ऐसा हो कि उसमें आपके जिस्म की नुमाइश ना हो। हम पे भी ये फर्ज आता है, तो हमें भी ये चीजें देखनी चाहिए। मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप कलाम सुनाते हो तो आपकी टी शर्ट नहीं होनी चाहिए, आपका प्रॉपर नीचे गारमेंट्स अंडर गारमेंट्स दोनों होने चाहिए। तो बाइबल सिर्फ आपको बताती है कि आपका हाथ पैर और मुंह नजर आना चाहिए। इवन ओल्ड टेस्टमेंट में जब आप देखते हैं तो सर भी ढका होता था, जिसपे पगड़ी होती थी और शलोक एक सोने की पत्थर लगा होता था सरदार काहिन के माथे पर। खैर, तो यहां पर हमें यह भेद खुदावंद देता है। और आगे जब हम देखते हैं, पीछे से हम स्टार्ट करेंगे, हमने पढ़ा था 7वीं आयत से 8वीं आयत में लिखा है, और ठंडे वक्त में जब ये हमने भी ये जाना, हमने इसको इंग्लिश वर्जन में भी जाना, लेकिन जब आप पहले ही देखते हैं कि खुदा ने चमड़े का इंतजाम किया। अब जब चमड़े का इंतजाम किया तो उस वर्ष को जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो मेरे साथ सुनिएगा गौर से, यहां पर क्या लिखा है। किंग जेम्स वर्जन में जब आप पढ़ते हैं, या इसको ज्यादा अच्छा रहेगा कि हिब्रू लैंग्वेज में जब आप पढ़ते हैं, हिब्रू से जो डायरेक्ट ट्रांसलेट हुई इंग्लिश में, वहां पे लिखा है एंड मेड गॉड याहवे फॉर एडम एंड हिज वाइफ ऑफ स्किन ट्यूनिक्स एंड क्लोथ्स देम। यानी कि खुदा ने आदम और उसकी बीवी हवा के लिए क्या बनाए, चमड़े के कुर्ते बनाए। अब जब लफ्ज आया ना ट्यूनिक्स यानी चमड़े के कुर्ते, उसको जब आप इब्रानी में देखते हो तो वो लफ्ज है कैथोनेट। क्या है लफ्ज? कैथोनेट। कैथोनेट का मतलब है, जब आप इसका ट्रांसलेशन देखते हैं इंग्लिश में तो लिखा है फ्रॉम
an unused root meaning to cover, यानी कि कोई ऐसी चीज आदम और हवा के लिए दी गई जो पहले कभी इस्तेमाल में ना थी। यानी कि ये चमड़े के कुर्ते, इनको आप खुदा का फजल कह सकते हैं, इनको आप कफारा कह सकते हैं कि खुदा ने हम पे फिर भी फजल किया। मतलब क्या लिखा था कि फल खाएगा तो तू, लेकिन खुदा ने मारा नहीं उसको। खुदा ने अपने बेटे को ज़िबा किया और वहां पर उनको क्या दिए, उसी बेटे के चमड़े के कुर्ते उनको बना के दिए। तमसीलन, जिन्हें कुव्वत का लिबास भी कहते हैं, जिन्हें खुदा रूह कुदूस भी कहते हैं, जिन्हें दूसरा मददगार आप कहते हैं। तो ट्यूनिक्स का मतलब जब आप देखते हैं ओरिजिनल मतलब में तो लिखा है कोई ऐसी चीज जो पहले कभी ना इस्तेमाल की हो। आपके मेरा बाप और अम्मा हवा जो है हमारे लिए इसलिए भी खुश नसीबी है कि हमारे बाप आदम और अम्मा हवा से हमें बता दिया गया कि हमारी बचत जब होगी तो वो ऐसे होगी कि जब खुदा का रूह आपने पहना होगा। मुकाशवा में क्या लिखा है कि जब तू आसमान पर जाएगा, तीसरे बाब में, तू अपने आप को यहां समझता है मैं बड़ा अकलमंद, पैसे वाला और बड़ा हिकमत वाला। वो कहता है नहीं, तू बदबख्त और नंगा है और तू गरीब है, तो अपना लिबास पहनकर मेरे पास आना। अक्सर आपने शादी की तमसील सुनी होगी, बाइबल में लिखा है उसने शादी का लिबास नहीं था पहना, तो दूल्हे ने कहना चुप के मारो ओथे नेरे जिथे दांतों का पीसना और रोना है। तो लिबास की बड़ी एक पहचान है। लिबास अगर कोई हरे कलर का पाई हो, उसके पैचेस लगे हो, टोपी पाई हो, तो आप देख के क्या बोलते हैं की है। तो आप इसी तरह देखते हैं जब आप कोई 3 पीस पहना हो और वो बड़ी असेंबली में खड़ा हो तो आप कहते हैं कि हाँ वो मिनिस्टर है। लिबास की बड़ी पहचान है। चर्चिज में जाते हैं, आपने हरे कलर का लिबास देखा हो, लाल कलर का देखा हो, जामनी कलर का देखा हो, पर्पल कलर का, तो आप देखते हैं कि हाँ जी ये प्रीस्ट है। लिबास की बड़ी पहचान है। लेकिन अफसोस की बात है अगर हम कुव्वत के लिबास हासिल किए बगैर मर जाए। कल हमने एक और भी सीखा था कि जिसका ईमान हो गया वो क्या ले फौरन बपतिस्मा। बड़े होके बपतिस्मा किस किस ने लिया हुआ है? ठीक है, तो हम खुदा ने चाहा बहुत जल्द ये काम भी करेंगे। अब जब आगे चलते हैं कि वो लिबास देखे किसी को नहीं मिला, खुदा बताता है कि वो मैंने अपने बेटे आदम और अपनी बेटी हवा के लिए रखा। हम थोड़ा आगे चलते हैं तो यहां पर हम एक बार फिर से 14वीं आयत तक आएंगे। तो 14वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने सांप से कहा इसलिए कि तूने ये किया, तू सब चौपाहों और दस्ती जानवरों में मलाऊन ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान क्या डालूंगा, अदावत डालूंगा, और तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। लास्ट टाइम हमने इसके बारे में बड़ा डिटेल में सीखा। लेकिन अजीजों यहां पर जब आप सोचते हैं, देखते हैं एड़ी पर काटेगा, यीशु को भी काटा, वो मर गए। लेकिन क्या लिखा है, एड़ी पर काटेगा, जहर फैलेगा, मर जाएगा, लेकिन वो मरकर भी जिंदा होकर तेरे सर को कुचलेगा। आज हमें भी काटता है कि नहीं? मुसीबतों की शक्ल में काटता है, लानतों की शक्ल में काटता है, बीमारियों की शक्ल में काटता है, कमजोरियों की शक्ल में काटता है। अब मैं आपको बताता हूं आपको कैसे काटता है। काटने का मतलब तकलीफ देना, आपको बदजन करना। भाई साहब जब आते थे इनको रास्ते में काटता था शैतान इब्लीस, कहते थे एडा तू पादरी हो गए, ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, इनको भी कहा जाता था। इनके तो खैर घर का ही मसला होते थे। तो आप देखें आपको भी शैतान इब्लीस कितना काट रहा है। रिसेंटली स्टार्टिंग में हारिस भाई और भी हमारे बहुत सारे बहन भाई हैं, एक भाई का तो मैं अक्सर नाम लेता हूं, ताला लाके थे मेरे का सुता, वरना पहले जब वो काम करता था ना उल्टा, घर वालों की जरूरत नहीं होती इसको कुछ बोले। लेकिन जिमी हैस पास से आया, शैतान काटना शुरू हो गया। आज भी काटता, क़यामत तक काटेगा ये। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आपके मेरे यीशु को भी काटा है, हम क्यों परेशान हो? ये उसने आपसे कहा है कि आप पर मुसीबत आएगी आएगी आएगी। इस मुसीबत पे अलग से भी टॉपिक करेंगे। पौलुस रसूल कहता है दलेर हो, मेरी तरह मुसीबत उठा। क्या उठा? तो जेड़ा कहे मैं खिदमत कर लिया, तो मुसीबत कोई ना है, तो वो फिर खिदमत भी नहीं होती। हम दुनिया का सारा आराम और आसाइश इकट्ठा करके बैठ जाते हैं, घरों पे रहते हैं, रोकड़ा आ गया बहुत ज्यादा, ना कुछ करना है ना कराना है, बस बनाते जाओ, चाहे माल समेटते जाओ। कोई एक चर्च विचों कोई एक सूरमा निकलिया है,
जिन्हें जाके अगे मुनादी की और कलीसिया बनाया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इबादत खाने का मतलब ये है कि आप आए हैं, आपने यहाँ पे स्कूलिंग की है, आपने यहाँ से कुछ सीखा है, अब मैं आपको भेजता हूं दुनिया के अंदर, जाओ सब दुनिया को जाके शागिर्द बनाओ। 5 खिदमतों में से जो चरवाहे की खिदमत है, उसका काम है भेड़ को तैयार करना, ताकि वो मुबशराना काम पूरी दुनिया में करे। सेटअप ही पुट्ठा कीता है, कुछ पता ही नहीं, मुसीबत का तुम बताते ही नहीं है ना। बरकत मिलेगी, बरकत मिलेगी, लहू मिलेगा, लहू मिलेगा, तू मौजे करेगा, तू शिफावा देगा। हिकमत इल्मियत का पता नहीं, मुसीबतों का पता ही नहीं। फिर जो मुसीबत आती है कि यसु तो साड़ी सोंदा नहीं, वो गया मसीहत को छोड़ के। नहीं, कोई मुसीबत आती है तो आप कहते हैं ना यसु के आगे दुआ करें। मैं आपको गारंटी देकर कहता हूं, कोई मुसीबत कहते आई है तो ये दुआ करो, यसु मेरी मनोकामना पूरी कर, नहीं करेगा। तो जे कोई ढिले ईमान वाला दवा मारो, उधर चलो। ईमान की कमजोरी, पढ़ाई नहीं, बाइबल आपको पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक मुसीबतों का तो बताती है। मुसीबत, जलालत, चपेड़े, ठुड्डे, इवन मौत, ये बाइबल का फलसफा है, ये बाइबल का स्टाइल है। अगर आप लानतान नहीं होंगे तो आप खुदा की नजर में मुबारक कहां से होंगे? वो कहता है मुझ हरे दरख्त के साथ ऐसा हुआ तो तुम तो फिर सूखे हो, मुझ हरे दरख्त के साथ ऐसा हुआ तो तुम तो फिर सूखे हो। आप देखते हैं लूका 6 बाब उसकी 22-23 आयत में लिखा है, जब इब्ने आदम के सबब से सब लोग तुम्हें, कितने लोग? 1 2 3 4 5 नहीं, एक मुल्क नहीं, एक दुनिया, पूरी दुनिया, इवन आपका बाप और आपकी माँ और आपकी बहन और आपका भाई, सब लोग, कितने? सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, यानी दुश्मनी रखेंगे, और तुम्हें खारिज कर देंगे। कलीसियाओं से क्या कर देंगे? खारिज कर देंगे और लानतान करेंगे, और तुम्हारा नाम कलीसिया से काट देंगे, तो तुम मुबारक होंगे। चंडा खाओगे तो मुबारक होगे। लानतान, आप लानतान हो रहे हैं ना, तो आपसे बड़ा तो मुबारक कोई नहीं। अब कल को ये भी कोई कह सकता है, जैसे दूसरी बड़ी डिनोमिनेशन कहती है हमें भी लोग लानतान करते हैं, और भाई आप में और हम में जमीन आसमान का फर्क है। आपका तो काम ही लानतान होने वाला है। आप अपने कामों को देखें ना, जो बगैर जैसे बदन रूह के बिना मुर्दा है, वैसे ईमान। आपको अपने अमाल तो देखिए। मैं थे बोतलों पूछना शुरू होया, 4 बंदे मेरी बेइज्जती पे कर, मैं तो यीशु का काम कर रहा, तो यीशु ने कहा तू मुसीबत चुकेगा तो मैं मुबारक, तू अपनी नजर में मुबारक है। आप अगर बुतों को पूछ रहे हैं, अगर बिला वजह नाच रहे हैं पुरकुटों के ऊपर, अगर बिला वजह बच्चों को बपतिस्मा दे रहे हैं, पता नहीं कौन सी जुबान बोल के उसे गैर जुबान कह रहे हैं, तो आपके ऊपर खुदा लान-तान करेगा भी और करवाएगा भी। और जब आप देखते हैं एड़ी पर काटेगा, तो एड़ी पर बिल्कुल काटा उसने, और आज हमें भी काट रहा है। और हमें मसीह की तरह बदजन नहीं होना, बल्कि इसका क्या करना है? मुकाबला करना है। अब यहां पर जब आप देखते हैं आगे, एक औरत को सजा मिली, एक मर्द को सजा मिली। जब औरत को देखते ना, मैं आपको सजा पढ़वाता हूं, तिजे शैतान ने कुछ किया ही नहीं। पता क्यों? शैतान को पता है मेरा की होना। आप देखिए यहां पर 12वीं आयत में क्या लिखा है, सॉरी 16वीं आयत में, 16वीं आयत में लिखा है, फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शौहर की तरफ होगी, वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और मर्द भी सुनो, और आदम से उसने कहा चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से क्या हुई? मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उस पैदावार से खाएगा। अब वो आप देखते हैं वो सारा है कि और तेरे लिए वो ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा, तू अपने मुंह के पसीने से। यहां से हमें एक और चीज क्लियर होती है। अक्सर हम एक जुमला बोलते हैं, खून पसीने दी। मैं खून पसीने दी कमा रहा, मैं खून दे पसीने दी, मैं खून को पसीने की कमा रहा हूं। तो खून पसीना नहीं, मुंह का पसीना। किसका है? मुंह के पसीने की रोटी खाएगा, जबकि जमीन में तो फिर ना लौट जाए। और उसने लौट जाए इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। गुड वेडनेसडे पे हमारे सर पे खाक लगाई जाती है और कहा जाता है खाक आदम भी सानू लानत दई जाते हैं। जेड़ी बाप साडे पे आदम ਨੂੰ लानत मिली, ਉਹ ही सानू लानत दई जाते हैं। हालांकि हमने
66 में ज़बूर सॉरी ईसाया 61 में पढ़ा कि अब वो हमारे सरों पर क्या सजाएगा, खुशी का सहरा, खुशी का, वो दूल्हा सहरा है, खुशियां मनाता है, आपके भी सर पे क्या सजाएगा, खुशी का सहरा। अभी सर पे माथे पे लगाने की जरूरत नहीं। तो आप जब देखते हैं कि यहाँ पर आदम और हवा को तो कहा गया, अब लीज का कोई जिक्र ही कोई नहीं, उन्होंने पीछे उन्होंने कह रहेंगे तेरे ना आ ही होएगा, तू आ ही करेगा। लेकिन जब आप देखते हैं आदम को कहा गया, हवा को कहा गया, हवा को क्या सजा मिली कि तू दर्द के साथ क्या करेगी, खादा फ्रूट, फ्रूट कितने गया, पेट से, सजा भी पेट की। फल खाया, फल गया पेट में, सजा भी पेट की मिली। मैं तेरे दर्द हमा को क्या करूंगा, अब्बे ने बागबानी ठीक नहीं की थी, उन्होंने कहा तू खेत जोतेगा, तू बागबानी नहीं करेगा, तू बागबानी के नाल की करेगा, काश्तकारी भी करेगा, अब तू मजदूर होगा। पहले जब तू बागबानी करनी, बागबान का ये है कि जैसे मुझे खेत मिला है, ये मेरा खेत है, मेरी मर्जी में जब जाके इसमें कुछ लगाऊं, जब जाके इसको देखूं, जब जाके इसकी निगरानी करूं, आजाद इख्तियार। लेकिन उन्होंने क्या हो, तू की करेगा, तू अपने मुंह दे पसीने भी खाएगा, तू खेत की सब्जी खाएगा, और खेत तेरे लिए ऊंट कटा रही पैदा करेगी, यानी कि तेन कख भी नहीं देगी, तो जे तेन चाहिए तो तेन मेहनत मारनी पड़ेगी। उसके बाद आप देखते हैं तो खाक और खाक में लौट जाएगा। आज आप देखते हैं हमारे पारसी बहन भाई वो लाश के साथ क्या करते हैं, जंगलों में छोड़ आते हैं। आपने देखा होगा पारसियों के जमात खानों के ऊपर एक ऊपर जगह बनी होती है, कभी नोट कीजिए सदर में एंजेलिना कहते सीटों ना बनाई थी लंबी बाबा 7-8 फुट की होती है, कोई मर जाता है ना उनका तो वो उसकी लाश वहां रख देते हैं, इसलिए परिंदे उसे खा लें, किसी काम आई, किसी मेन ऑर्गन जो होते हैं जैसे अंदर किडनी, हार्ट वगैरह, आंखें वगैरह, ये निकाल लेते हैं, उन्हें रिस्टोर कर देते ताकि ये भी किसी मरीज के डोनेशन के काम आ जाए, किडनी, फेफड़े वगैरह। तो गोश्त के काम आइए, तवज्जो भी जाकर कीड़े खाने पर बात ही होना। अच्छी सोच है, कितनी अच्छी सोच है कि नहीं? क्यों? किसी का काम आ जाएगा भाई, तो खाक में लौट जाएगा। वो मेरा हो गया, खा के और तो खाक में। आप हमारे हिंदू बहन भाइयों को देखते हैं, मरते तो क्या करते हैं, जला देते हैं, वो जला ही देते हैं, राख बना देते हैं। आप जब कहते हैं कि कायनात का वाहिद ये कलाम है, वाहिद खुदा आपसे कहता है कि उन्होंने दफनाओ जाके, ये जिथों आया नु उत्थे ही जान दो, ते ये जड़ा करदे ने इन्हां दे गुनाह दी माफी है, ते फिर खुदा क्यों उन्हें ना सारे मारे। दूसरे हैं वो दफना देते हैं, वो पता नहीं कौन से माबूद के नाम से क्या क्या करके दफना देते हैं, तो खुदा नहीं छोड़ेगा इन लोगों को। वो अपने कलाम के खिलाफ तो कोई बात सुन ही नहीं सकता। यीशु मसीह कहता है इब्ने आदम ने जो मर्जी कही आओ, हालांकि वो भी खुदा दे, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कही आओ, मैं बंदा बन के आया ना, मैंने कही आओ जो कहना चाहिए, हालांकि उन्होंने शैतान तक उन्होंने कह चढ़े। तो वो तो जब आप पढ़ते हैं, तालमूद पढ़ते हैं, मिशना पढ़ते हैं, हकारा पढ़ते हैं, और भी इस तरह की कुत्ता पढ़ते हैं, तो वहां पे तो बहुत कुछ कहा गया उनको, शैतान कह के एंटी का छड़े हम। लेकिन उसने कहा जो रूह के खिलाफ गुनाह होगा उसकी माफी, यानी इस कलाम के खिलाफ जो गुनाह है इसमें अगर बढ़ाओगे घटाओगे तो इसकी माफी नहीं होगी। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं तो खुदा आपसे कह रहा है खा के खाक में लौट जाएगा, यही एक प्रोसेस है, इसके अलावा इस कायनात में कोई प्रोसेस नहीं है। और जमीन क्या हुई, हमारे बाप के सबब से लानत लफ्ज का क्या मतलब है? लानत लफ्ज का जब आप उर्दू लुगत में पढ़ते हैं तो जिल्लत और रुसवाई, किसी को बेदखल कर देना, अपने से किसी को दूर कर देना, किसी से फटकार पा देना, किसी पर गजब नाजिल हो जाना, किसी पर कहर नाजिल हो जाना, किसी पर अजीम मुसीबत डाल देना, होते रहते कर्ज ही रहेगा। इस कर्ज को जो खत्म किया वो गलतियों 3 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि मसीह यीशु हमारे लिए लानती मौत मरा। मसीह यीशु हमारे लिए कौन सी मौत मरा? लानती मौत मरा। इस लानत को खत्म करके उसने जब सारी कायनात के गुनाह, इवन बाप आदम और अम्मा हवा के जबिल्ली गुनाह जो
गुनाह मैंने आपसे बताया दो किस्म के होते हैं, एक वो जो हम इरादतन करते हैं, दूसरा वो जो हम पर बाप आदम और अम्मा हवा का गुनाह है, हमारा जो जेनेटिक सिन है जिसे आप ओरिजिनल सिन भी कहते हैं, ये जो जबिल्ली गुनाह है उसको भी कदम खुदा के बेटे यीशु ने किया। जब मैं और आप ईमान लाते हैं यीशु मसीह पर तो हमारे ऊपर से ये गुनाह खत्म हो जाता है। तो आगे जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है, ये सारा हम लोगों ने खुदा के फजल से स्टडी किया हुआ है। अब एक और भी चीज जब आप देखते हैं कि हाँ, अम्मा हवा को जो सजा मिली वो सजा क्या मिली? अम्मा हवा को सजा मिली पेट की, और बाप आदम को उन्होंने बागबानी नहीं की, उन्हें भी सजा वही मिली। और आपको पता है एक और डिनोमिनेशन आई है, यूनिटेरियन डिनोमिनेशन, वो कहते हैं शैतान है ही कोई नहीं। आपने सुना है इब्लीस कोई नहीं, इंसान जो पैदा करेगा और उस पैड़े में फल आएगा। इब्लीस नहीं है, इंसान बुरा करता है तो उसका फल खाता है, और अगर इंसान अच्छा करेगा तो उसकी बरकत हासिल करेगा। ऐसा सुना है आपने कभी? आप सुनेंगे आगे जब चलेंगे, आप जब बाहर मार्केट में जाएंगे, मसीह मार्केट के अंदर, तो आपको ये डिनोमिनेशन भी एक मिलेगी। एनडी भी डिनोमिनेशन है कि जेड़े कहने ने कि जी शैतान इब्लीस है नहीं, इंसान जो करता है वो अपनी मर्जी ना करता है। लेकिन अजीजों याद रखिएगा शैतान इब्लीस है। आपके मेरे गुनाह की वजह से इसने यीशु मसीह को भी आजमाया, और यीशु मसीह को कहता है कि मुझे झुककर सजदा कर। आदम का गुनाह जो चलता आ रहा है आज हम में, ये खत्म कैसे होगा? गलीतियों 3 बाब में लिखा है कि हमारे खून को बदलता है, हमारी नस्ल को बदलता है, हमारे डीएनए को बदलता है, तब हम इंसान की नस्ल नहीं रहते, हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। हम खुदा के क्या बन जाते हैं? फर्जंद बन जाते हैं। अब जब आप देखते हैं आदम की नस्ल, हमारा शुरू जो था, हमारा जो शुरू था, एक खूब ही शायर फरमाते हैं, वो कहते हैं आदम से मिली मौत हयात इब्ने आदम से, आदम से मिली मौत, यानी कि हमारा बाप आदम आया, उस एक मौत के वसीला से पूरी दुनिया में क्या फैल गई? मौत फैल गई। लेकिन हयात इब्ने आदम से, दूसरे आदम से हमें हमेशा की जिंदगी मिली। दूसरा आदम कौन है? लिखा है आदम से मिली मौत हयात इब्ने आदम से, आगाज से बेहतर हुआ अंजाम हमारा। हालेलुया। आगाज तो बहुत बुरा रहा, लेकिन अंजाम मसीह ने आके हमारा बेहतर कर दिया। पैदाइश से आपको मुकाशफा की इंफॉर्मेशन जिंदा खुदा देता है, शुरू ही से आपको अंजाम की खबर देता है जिंदा खुदा। उसके बाद जब आप देखते हैं कि हमने ये भी जाना कि खुदा ने शुरू में सब कुछ बनाया, खुदा ने एक एक चीज को पैदा किया। अब मैं आपसे एक सवाल किए जाता हूं, आखिरी बात, कि खुदा ने सबसे पहले क्या बनाया या क्या तख्लीक किया या क्या बनाया? उसने जमीन और आसमान को बनाया, और कोई रोशनी को बना तारीकी को जुदा किया, रोशनी को बनाया और तारीकी को जुदा किया, और फिजा के ऊपर के पानी को फिजा के नीचे के पानी को जुदा किया। ये तो दूसरे दिन में आ गया। सबसे पहले खुदा ने क्या बनाया? सबसे पहले तो शाम आ गई ना, बताते पहले आपसे तो उसके लोगों को बनाया, आसमान और उसके लोगों को। आसमान के बड़े लोग हैं, फरिश्तेगान को बनाया, मखलूक, वो मखलूक में आता है, वो इंसान लोगों में नहीं आता। फरिश्तेगान को बनाया। इससे भी पहले अगर चले जाए तो खुदावंद की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश, खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। इट मींस के पहले पानी था। उससे भी पीछे चले जाए आप तो एक बाइबल भी बाहर निकल गए। अपना तख्त बनाया, और उससे भी पीछे चले जाए। जाए तो वो तो जा ही नहीं रहे, वो तो पीछे से होके आ गए। पीछे जाया ये वही गाने तेरे नीको की मस्ती का है ना, लेट देयर कहते फिर मारे पेट से दबा दे जा। मेरे साथ आप निकालिए, अभी आयत आप खुद पढ़ेंगे। मिसाल की किताब उसका 8वां बाब। सोचे आपका खुदा आपको शुरू से अंजाम की खबर दे रहा है। गल नहीं की तो कर रहे हैं तो कायनात जो कुछ भी नहीं, खुदा ने सब तो पहले की बनाया, बात आपको जाके बाइबल के मिड में मिल रही है। कैसी बात है? हालांकि पैदाइश पहले बाब में मिल जानी चाहिए। क्या कहते हैं आप इस बारे में? आपका होमवर्क है, मैं आपसे अच्छा अपना होमवर्क सुन लेता। आपका होमवर्क है कि आपने इस 8वें बाब को घर जाके पढ़ना है।
मैं आपसे बारी बारी आप लोगों को कॉल करूंगा और आपसे पूछूंगा आपने ये पूरा बाप पढ़ा कि नहीं। हाँ, आपने घर पे जाके पढ़ना है, लेकिन अभी जो आपने पढ़ना है वो आपने पढ़ना है 18वीं आयत से। इंसाल की किताब उसकी 17वीं आयत से पढ़ लें। पहले निकाल ले सब। इंसाल की किताब 8वां बाब, उसकी 8वां बाब निकाले। ऊंची आवाज से कौन पढ़ सकता है? 17वीं खड़े होकर 17वीं आयत से पहले सब निकाल ले। निकाल लिया सबने? एक मिनट इधर इंसाल की किताब और उसका 8वां बाब। बाब 17वीं आयत। यहाँ से कौन पढ़ेगा? ऊंची आवाज से खड़े होकर पढ़िएगा। जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं मैं उनसे मोहब्बत रखती हाँ। और जो मुझे दिल से ढूंढते हैं वो मुझे पालेंगे। पढ़ते जाए वहां पर, पढ़ते जाए। दौलत और इज्जत मेरे साथ है, बल्कि दायमी दौलत और सदाकत भी। मेरा फल सोने से बल्कि कुंदन से भी बेहतर है और मेरा हासिल खालिस चांदी से। मैं सदाकत की राह पर इंसाफ के रास्तों में चलती हूँ ताकि मैं उनको जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं माल के वारिस बनाऊं और उनके खजानों को भर दूं। खुदावन ने इंतजाम आलम के शुरू में अपनी कदीमी संतों से पहले मुझे पैदा किया। मैं अज़ल से यानी इब्तदाई से मकरूर हुई। अब यहाँ पे देखें, मैं अज़ल से यानी इब्तिदा से हूं। जब कायनात में कुछ नहीं था तब खुदावन ने इंतजाम आलम से, इंतजाम आलम के शुरू ही में मुझे अपनी कदीमी की सनतों से पहले पैदा किया। यानी इस कायनात में जो कुछ नहीं खुदा ने मैनू पैदा किया, अब वो है ही क्या? जी आगे पढ़िए। मैं अज़ल ही से यानी इब्तिदा ही से मुकर्रर हुई। अच्छा, सुनने में अब क्या लग रहा है? मुकर्रर हुई हो जाएगा। हाँ, अच्छा आपने गैस किया। किसी फीमेल के बारे में बात करेंगे। और कोई? जी जी जी। किसके? रूह के बारे में। जबरदस्त। हाँ जी जी जी, रूह। और कोई? संदीप भाई ने बोल दिया रूही क्या। अच्छा चले, और चले आगे पढ़ते हैं। आगे इसका जवाब है आखिरी। इससे पहले कि जमीन थी मैं उस वक्त पैदा हुई जब गहराव। अब देखिए, गहराव के ऊपर हम पैदाइश में पढ़ते हैं, अंधेरा था और पानी की रूह, पानी की सतह पर खुदा की रूह। ये उससे भी पहले की बात कर रहे हैं। ऊपर क्या लिखा है? उस वक्त मैं पैदा हुई जब गहराव ना था, ना गहराव था ना पानी था। मैं उससे भी पहले। और उसके ऊपर जब लिखा है इससे पहले की जमीन थी, जब ना जमीन थी, ना गहराव था, ना पानी था, कुछ भी नहीं था, मैं तब पैदा हुई। मैं तब पैदा। आगे आते जब पानी से भरे हुए चश्मे भी ना थे। आगे देखते हैं। आगे पहाड़ भी नहीं थे, टीले भी नहीं थे, मैदान भी नहीं थे, जमीन भी नहीं थी, आसमान भी नहीं था, समंदर भी नहीं था। ऊपर अफलाक, जो आपका जवाब था। अफलाक में ना आसमान था, ना फरिश्तेगान थे, कुछ भी नहीं था। गहराव के सोते भी नहीं थे, पानी भी नहीं था। उससे पहले आप देखते ना बादशाह थे, ना हाकिम थे, ना हुकूमतें थी। अब एक ही आयत में आपसे पढ़ूंगा और आप समझ जाओगे। 12वीं आयत को पढ़ लीजिए। 12वीं, इसी बात की 12वीं। मुझे हिकमत ने होशियारी को अपना मस्कन बनाया। बस छोड़ दे, बैठ जाए। मुझ हिकमत ने होशियारी को अपना मस्कन बनाया है और इल्म और तमीज को पा लेती हूँ। अब बताएं, ये खुदा किसके बारे में बात कर रहा है? पूरा पढ़ते चैप्टर तो काफी टाइम लग जाता। इसकी हेडिंग भी देखें क्या लिखा हुआ। हिकमत की तारीफ। खुदा की हिकमत के लिए एक बार जोरदार तालीम। इस कायनात में जब कुछ भी नहीं था तो खुदा की अकल थी। अकल से सब आया ना जी। और खुदा की हिकमत यीशु मसीह को कहा जाता है। इसको हम डिटेल में सीखेंगे। 9 नेमतें अभी यहाँ पे तो पेंट हो गए, वरना यहाँ आपको लिखी 9 नेमतें नजर आती।
9 नेमतें जो हैं, हम कहते हैं ना रूह मिल गया तो आपको नेमतें मिल गई, 9 नेमतों में सबसे पहली नेमत हिकमत की है। बदरुआ कड्डा दी नहीं, शफावा दे दी नहीं, वो पता नहीं केड़ी जुबान बोल के गैर जुबान कहने वाली नहीं। ये 3 बड़ी पॉपुलर है। उन कलाम दा भावे के भी ना होता है आ हो रहे ना, तो पता कहां से आती है, ये वहीं से आती है। समझ गए ना, जिसको कलाम ही नहीं आता वो किसी बदरू को कैसे निकाल सकता है, और जिसने कलाम ही पैदाइश से मुकाशवा तक नहीं पढ़ा, उसको समझ ही नहीं, वो किसी को शिफा कैसे दे सकता है। याद रखे जड़ा पा सकता है ना ते वो कढ भी सकता है, ते जड़ा कढ सकता है वो नाम तो बड़ा जादूगर है, कोई भी नहीं है, आपको कई नाम ले सकता हूं। तो जिसने बाइबल नहीं पढ़ी वो कैसे किसी को शिफा दे रहा है, वो उधर से दे रहा है शिफा। तो आप देखिए कि हिकमत खुदा ने बनाई, कायनात में जब कुछ भी नहीं था, खुदा और खुदा की अकल थी, और खुदा की अकल खुदा का बेटा यीशु है। हालेलुया हालेलुया। अजीजों, इस गहरे भेद के लिए एक बार जोरदार ताली। अब जब आप घर जाएंगे इसको पूरे पहले आयत से लेके 36वीं आयत तक पढ़ेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। और मजे की बात ये लिखी किसने, सुलेमान ने, द वन एंड ओनली, हिकमत का बादशाह। उन्होंने क्या, मिन्नू दौलत माल पैसा नहीं चाहिए, मिन्नू तेरा बेटा चाहिए। और उसका बाप क्या फरमाता है ज़बूर 2 में, बेटे को चूमो। क्या कहता है, बेटे को चूमो। ते मुंडा के अंदर बेटा ही दे दो। बाप वो है जो शेरों और रिच्छों के मुंह फाड़ देता था, जाकि जूलियत का सर तन से जुदा कर देता है। और बेटा वो है जिसके बारे में खुदा कहता है कि इस जैसा बादशाह न था, न है और ना रूए जमीन पर कभी होगा। और बेटा क्या फरमाता है, सुलेमान बादशाह कहता है, खुदावंद तेरी रूह के बारे में मेरा बाप फरमाता है कि हम आसमानों पे भी चढ़ जाए तो वहां पर भी तेरी रूह, हम पंख भी लगा ले वहां पर भी तेरी रूह, हम समंदर की तह में चले जाए वहां पर भी तेरी रूह, हम पाताल में चले जाए तो वहां पर भी तेरी रूह। अब तू मुझे कहता है कि मेरे लिए घर बनाओ जहां पर मैं रहूं। मैं तो ये समझता हूं कि तू तो आसमानों के आसमानों में नहीं समा सकता, लेकिन तू एक घर में कैसे समाएगा। लेकिन मेरे माने अगर तूने कह दिया तो घर तो एक बड़ी चीज है, तू एक 5-6 फुट के बंदे के अंदर भी समा जाएगा। हालेलुया हालेलुया। एक बार जोरदार ताली। जिंदा खुदा आपको अपनी हिकमत बताता है, और खुदावन ने चाहा तो जब रूह कुदुस के टॉपिक्स हम शुरू करेंगे तो हिकमत में एक अलग से मैसेज होगा। खुदा की हिकमत थी तो तभी सब कुछ पैदा हुआ, इसीलिए लिखा है कि मसीह के वसीला से सब कुछ पैदा हुआ। आखिरी बात जो हम आपसे करने को है, दोबारा वहीं पे आ जाइएगा, पैदाइश 3 बाब, लफ्ज मशरिक जो आया है, इसको हम 5 मिनट में वाइंड अप करेंगे। 22वीं आयत से कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ सकता है, इनके अलावा। 3 बाब उसकी 22 आयत जी, बारी बारी आप एक एक आयत पढ़ सकते हैं। और खुदा ने कहा, देखो इंसान नेको-बद की पहचान में हम में से एक ही मानद हो गया। अब यहाँ पर जब एक मुनाजरा हो रहा था मेरे खादम से, तो खादम कह रहे थे, देखें जी इसका मतलब है कि हम की मानद बदी को पहचानने वाला हो गया, तो खुदा तो बदी को नहीं जानता, इसलिए इसके साथ जो था वो लूसीफर था, वो बदी को जानता था। तो हम जो लफ्ज है, दिस इज नॉट अ मैजेस्टिक वर्ड, ये जिंदा खुदा ने अपने सीगा जमा पेश किया कि हम का मतलब है एक से ज्यादा। कुछ लोग कहते हैं आपको मिलेंगे जो यहावे विटनेस, हमारे क्रिश्चियन लोग हैं, यूनिटेरियन वाले या मैसेनिक कॉन्ग्रेगेशन ऑफ ज्यूज में जो आप पहनाए जाते हैं जीसस ओनली वाले, तो वो ये कहते हैं जी यहाँ पर तो आप देखते हैं आज भी जब गोरों का जमाना होता तो कहते थे ओ माय लॉर्ड, बादशाह क्या बात करते थे, हम आज जाएंगे वहां। वो कहते हैं ये तो एहतरामन एक बात हुई, एहतरामन बात नहीं हुई। जब आप इसके हिब्रू ओरिजिनल वर्ड में जाते हैं तो ये सीधा जमा बात हो रही है जो हमने एलोहीम सीखा। अब ये साथ था कौन, और खुदा ने कहा देखो इंसान नेको बद की पहचान में हम में से एक ही मानिद हो गया। अगर आप कहते हैं कि ये खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुदुस है, तो इस आयत को पढ़ के हमें ये समझ आ रही है कि हम में से एक ही मानिद हो गया जो बदी को जानता है। तो इसका मतलब खुदा बाप, बेटा या रूहुल कुदुस, इन तीनों में से कोई एक बद है। अगर आप किसी फरिश्ते को फिट नहीं करते तो
तो रिश्ते को तो लूसीफर को फिट करेंगे तो बचत हो जाएगी। लेकिन जब आप कहते हैं कि ये तो लिखा है कि खुदावन खुदा यानी ओ माय लॉर्ड ओ माय गॉड या इब्रानी जुबान में या हमें एलोहीम, तो क्या समझ में आता है इसमें? नेक और बद दोनों को जानता है। तो खुदा इसका मतलब है बदी जानता है एक बार अपने लिए जोरदार ताली। तो जानना और करना जमीन आसमान का फर्क है इसमें। आप किसी चीज को जानेंगे तो पेश करेंगे ना। बाइबल में कुरूश की किताब में लिखा है गैर माबूदों के नाम भी तेरे मुंह से ना निकले। उसने इसलिए नहीं कहा कि सखान ले ना निकलन, उन्हें इसलिए क्या है कि ताजीमन ना निकलन, आप उसकी ताजीम ना करना शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई ये पुट्ठी बाइबल पढ़ना क्यों कहते हैं, तो मैं आपसे पूछा आप कुछ बता रहे पुट्ठी जिमें एंड पुट्ठी कर लो एंड या मुकाशवा तो पीछे पढ़ना शुरू नहीं। पुट्ठी का मतलब ये है कि देखा यीशु मसीह कहते दुनिया का नूर मैं हूं। आपने कहना यीशु मसीह दुनिया का नूर नहीं है, शैतान इब्लीस दुनिया का नूर है और यीशु मसीह शैतान है। कितनी बड़ी बात है। आप ईमान लाकर जब ये बोलेंगे ना तो आपके पास उसी वक्त चीजें आ जाएंगी और बोलेंगी ऐ मेरे आका हमें बताओ क्या करना है, तू ये सारा सब कुछ। इसको कहते हैं ब्लैक मैजिक और ये उसका फर्स्ट स्टेप है। आगे जाकर तो आपने बड़ा कुछ करना होता है मसीह के खिलाफ। ये है फर्स्ट स्टेप। यहां से आपके ईमान का मुतय्यन किया जाता है, आपके ईमान की लिमिटेशंस देखी जाती है। आप अब मैं जैसे आपके सामने बोल रहा हूं, मैं आपको तालीम दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा इस चीज पे ईमान नहीं है, आप समझ इस बात को। तो यहां पर यही बात हो रही है कि हम में से एक ही मालिक हो गया, यानी हम बुराई को तो जानते हैं लेकिन खुदा वो है जिसमें गुनाह नहीं है। और यीशु मसीह कहते हैं कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे, और रूह कुदुस के बारे में यूहन्ना के खत में लिखा है वो ऐसा उस्ताद है जो झूठा नहीं, तीनों आपको साबित करे। तो ये इल्म की बात हो रही है, हिकमत की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हिकमत। आपको पता होना चाहिए, आपके अंदर अकल होनी चाहिए, आपके अंदर दानिश होनी चाहिए, आपके अंदर फहम होना चाहिए इस बात का। उसके बाद जब आप देखते हैं आगे लिखा है अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त में से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। खुदा नहीं चाहता था कि इस गुनाह की जिंदगी में वो हयात के दरख्त कुछ खा ले तो गुनाहगार हमेशा जिंदा रहे। तो फिर तो मसीह के आने का भी कोई फायदा, बल्कि मसीह आती तो फायदा ही नहीं था। आगे क्या हुआ? इसलिए खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया। कितना पैड़ा लग रहा है कि खुदा ने साढ़े मां बाप बाहर ही कट छड़े। एक अफाली ने खादा सी इतने लोग कत्ल कर करके माफी करके पौलुस रसूल देखे रसूल आजम बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? रसूल आजम। तो इनका भी माफ कर देते भाई, बाहर ही निकाल दिया। क्या कहते हैं, नाइंसाफी है कि नहीं? फिर क्यों निकाल दिया बाहर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज इसी को स्पेसिफिक चीज को देखे कि यार माफ भी कर देना, चले वो सारे गुनाह फिलहाल छोड़ दे, इसी को ध्यान में रखे कि फल भी खाता है तो खुदा कर देता माफ, बाहर ही काटे चढ़े हम। उन्होंने अपना गुनाह बताया था कि उन्होंने शैतान ने देश की बात मानी। अच्छा, बाहर निकालना हमारे लिए फायदेमंद है नुकसानदेह? अगर बाग दे विच हुंदे ते साड मजे सन बाप जैसी जिंदगी गुजार सर वो जैसे वो स्टोरी कलाम में लिखी हुई है जो खोया हुआ बेटा। हाँ तो जोर जाता है और वो अकल आती है फिर आने पहला मुर्दा से जिंदा हो गया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस बात को लेके हमारा अगर हम पैदा होते तो बाग अदन के अंदर होते। आज जिथे वहां ना कोई रोटी ना पानी, कमाओ ते खाओ, खज्जल खुआर, ना गैस ना बिजली, जिन्हें चांदते रह रहे। तो उस वक्त तो वो तो खुदा का एक बनाया हुआ बाग था, सोचे कैसा होगा। तो नाइंसाफी नहीं लगती कि यार उन्हें हजार सुलेमान बादशाह की बात करें, हजार शादियां कर दी, उन्हें माफ कर देता। साउल को देखें, पौलुस बाद में बन गया, खुदा की कलीसिया को पता नहीं कर दिया, उनको भी माफ कर दिया। बेनू भी माफ कर देने का फाल नहीं दिखा था। ये हमारे लिए फायदेमंद हुआ या नुकसानदेह? कैसे फायदेमंद? कैसे? अजीज अगर हम कहते ना हमारे नुकसानदेह, तो बाप हमारा बाग में रहता
وہ کھا لینا تو ساڈے ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੂਹ ਫੂਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਚ ਜਾਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ کہ باہر جائے گا کوئی گل نہیں چھوٹیاں تکلیفیں آئیں گیا لیکن ہمیشہ دی زندگی پالے گا ہاللیلویہ پولس رسول فرماتے ہیں کہ خدا یہ کانٹا جو ہے مجھے چبھتا ہے اس کانٹے کو نکال دے آپ کئی تفاسیر کر سکتے ہیں کہ جو اس کی بیماری تھی وہ اس کو کانٹا کہتا تھا اس کو پتا تھا میں مر جاؤں گا تو میں خدا کی بادشاہی میں جاؤں گا وہ خدا سے کمپلین کرتا تھا خداوند یہ میرے اندر سے یہ جان نکال دے کیونکہ میری کمر ٹیڑھی ہو چکی ہے میری کمر ٹوٹ چکی ہے میں نے اتنے کوڑے کھائے میں نے اتنی مارے کھائی میں سمندر کے خطروں میں رہا میں سردی کے خطروں میں رہا میں گرمی کے خطروں میں رہا میں سنسار ہوا کئی بار مجھے بھید لگے مجھے کوڑے لگے میرے جسم پر گوشت ویسا نہیں جیسا ہونا چاہیے میری کمر ٹوٹ چکی ہے خداوند مجھے آزاد کر مجھے کئی قسم کی بیماریاں لگ چکی ہے اے خداوند مجھے آزاد کر میں یہ مصیبتیں نہیں جھیل سکتا لیکن یسوع کہتا ہے میرا فضل تیرے لیے ہاللیلویہ ہاللیلویہ فضل ہمارے لیے کافی ہے مصیبتوں میں تو آپ ہوں گے لیکن یسوع کہتا ہے ذرا بھاگ جو باہر نکل اے تھوڑی مصیبتیں تو لے لے گا لیکن ہمیشہ دی زندگی تیری ہے ہاللیلویہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے اوپر مصیبتیں تو تھی لیکن ہمارے لیے جو بڑی مصیبت تھی اس کا خدا نے بندوبست کر دیا کہ لے موت ارے موت جنہیں تو ڈارنا ہے انہوں میں عالم ارواح میں نالی آگ چی پانگا تو اب نہ روئے گا اب نہ آنسوں گے میں تیرے سارے آنسوں پہنچ لوں گا آگے کیا لکھا ہے اس لیے سوری 24ویں آیت میں لکھا ہے سیکنڈ لاسٹ ورس میں چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شولہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں ہاللیلویہ ہاللیلویہ اکثر لوگ پوچھیں گے اگر آپ سے کوئی پوچھ لے باغ عدن ہون کتنے ہوئے جی خدا نے چکیا تھا نہیں آدم نے باہر کر نا آگ لگے ہوتے آپ کبھی اینیمیشنز میں دیکھیے گا 2 فرشتے دکھائے گئے وہ گھوم رہے ہوتے تلوار لے اس کو آپ اندر نہیں جا سکتے آج بھی تو ہونا چاہیے خدا نے تو نہیں کہا اٹھا لیا آج قائم ہو جب آپ غور و خوض کرتے ہیں یا اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں ایمان کا مطلب ہے اندیکھی چیزوں کا ثبوت تو جب آپ ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب نوح کا طوفان آیا تو خدا نے باغ عدن کو اٹھا لیا غرق آپ کہہ نہیں سکتے کرنا ہو تو اسی وقت کر دیتا باغ عدن کو کیا کیا اٹھا لیا عہد کا صندوق آج آپ کو کہیں نہیں ملے گا آرٹیفیشل گروپ بنا لے تو بنا لے مکاشفہ 19ویں باب میں جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو عہد کا صندوق نظر آتا ہے جب مقدس کھلا تو میں نے کیا دیکھا عہد کا صندوق دیکھا کیونکہ عہد کا صندوق خود خدا ہی اس میں ظاہر ہوتا تھا اب مشرق کی طرف 2 کروبیوں کے چکر کہاں لگا کے بھیج دیا باغ کی مشرق کی طرف ہم ریسنٹلی پڑھ چکے ہیں جمیل ناصر صاحب اتنا بڑا نام ہے وہ کہتے رہے ہمیں سکھاتے رہے پتہ نہیں کیا کیا کھلاتے رہے کہ جی بابل دے وچ کی سی جی عدن کتنے سی بابل دے وچ بابل آج کا عراق لیکن آپ دیکھیں عراق جو ہے یہ آپ جب دیکھتے ہیں آپ کو کلیئر ہو جائے گا پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہمارے باپ آدم کو جب نکالا تو کس طرف بھیج دیا عدن کی مشرق کی طرف اب جب عدن کی مشرق کی طرف گیا تو وہاں پہ قائن اور حابل پیدا ہوئے قائن نے قتل کیا تو قائن کو اس کی مشرق کی طرف بھیج دیا جتھے انہوں کڈیا گیا ہی مشرق تو اردو ہی اگے مشرق پہ چلا گیا اردو اگے مشرق تک گیا تو انہیں یرو شہر تعمیر کیتا اور یرو شہر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی سیولائزیشن نمرود کی شکل میں آئی اور نمرود شہر جو ہے وہ بھی ملک سنار کی مشرق میں تھا گھور کے مشرق میں چلے گئے اب جب آپ دیکھتے ہیں اتنی مشرق میں گئے تو وہاں پر 11ویں باب میں آپ کو بابل نظر آتا ہے جسے آپ عراق کہتے ہیں یہ تو کئی ہزار سال پیچھے پہ چلے گئے تو یہاں پہ آ کے ساری پروفیسی ہی خراب ہو جاتی ہے ایون ہم لوگوں نے پھر میپ میں بھی سیکھا کہ یہ سارا ہے اب جب آپ دیکھتے ہیں یرو شہر جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بابل کا برج اور جب بابل کے برج کے آگے آپ جاتے ہیں ایزیکیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا نے جو ہیکل مقدسہ بنائی لوگ نافرمانی کیسے کرتے تھے کہ وہ ہیکل کی طرف پیٹ کرتے
मशरिक की तरफ आफताब को सिजदा करते थे, हैकल की तरफ पीठ करके मशरिक की तरफ आप यानी सूरज को सिजदा करते थे, सूरज देवता को सिजदा करते थे। और ये आपके मसीह आज के ईमानदार लोग थे, हैकल के अंदर कीड़े मकोड़े बनाकर उन्हें सिजदा करते थे। औरतें जो है वो तपावन तपाती थी, रोटियां बनाती थी, किसके लिए? आसमान की मलका के लिए। और हम इतने बेशरम और जलील लोग हैं, हमने आसमान की मलका मुकद्दसा मां मरियम को बना दिया। बाइबल बताती है सबसे बड़ी शैतान थी, आम पढ़ के मां को पेट काट देता। हमारी मुआफी है? कोई मुआफी नहीं। अब आप देखते हैं ये तो हो गए 4 मशरिक। पहले आदम को निकाला मशरिक की तरफ, दूसरा कायन कत्ल करके गया मशरिक की तरफ, तीसरा जो नमरूद बादशाह आ गया मशरिक की तरफ, चौथा इज़राइल की किताब में हैकल के पीछा करते थे, आफताब की सिजदे कर खुदा की तरफ पिछवाड़ा कर चढ़े। तो सिजदे के ठोक रहे ने सूरज देवता मखलूक को। शैतान का शुरू से स्टाइल था, मखलूक की पूजा करो। अच्छा मेरी नहीं करनी, सूरज की कर लो, चांद की कर लो, कुत्ते की कर लो, बिल्ले की कर लो, चूहे की कर लो, बांदर की कर लो, हाथी की कर लो। और जरा पखाना करते हैं उनको खाओ, खाते हैं लोग, पीते हैं लोग। तो शैतान ये करवाना है कि भूखा जो है ना, ये शक्ल और सूरत और शबी खुदा की ना, देखो इसके साथ मैं करता क्या हूं। इसको मुंह भी खिला रहा है, इसको मूद भी पिला रहा है, इसको सिजदे भी करवा रहा है कुत्ते बिल्लों से। और जब मिर्गी आती है ना तो इसको बिगाड़ता भी है, बदरू आती है ना तो उसको जमीन पर लगड़वाता भी है। इसलिए हमारे अंदर खुदा का रूह होना बड़ा जरूरी है। 5वीं मशरिक जब आती है तो आप यीशु मसीह के मुंह से सुनते हैं नेक सामरी की तमसील। क्या कहते हैं? सामरी जो है किस तरफ जा रहा था जी? एक इंसान, एक खादिम, एक दोस्त, एक भाई किस तरफ जा रहा था? यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था, यानी कि वो भी खुदा की तरफ से मशरिक की तरफ जा रहा है। जदो मशरिक आ जाओगे गुनाह मिलेगा। लेकिन जब यीशु पैदा हुआ, बाप आदम ने भी गुनाह किया मशरिक की तरफ, कायन ने भी कत्ल किया मशरिक की तरफ, नमरूद ने भी गुनाह अजीम किया मशरिक की तरफ, इज़राइल की किताब में कौम बनी इसराइल ने भी गुनाह किया मशरिक की तरफ। यीशु मसीह ने भी आगे तमसील दी नेक सामरी की मशरिक की तरफ। तो थल्ले जाना है, कबर ची सीधा मशरिक की तरफ जाएंगे, सीधा कबर पे खुदा की तरफ आपने ध्यान लगाना है। यीशु मसीह जब हैकले मुकद्दसा के अंदर नहीं बल्कि यरूशलेम शहर के अंदर दाखिल हुए तो वो शुमाली इतराफ की तरफ, मशरिक की तरफ से दाखिल हुए। किसकी तरफ से? मशरिक की तरफ से। गुनाह कर करके मशरिक की तरफ जा रहे हैं, यीशु मशरिक वालों वापस पे आमदा है। अपने घर के अंदर जिथे उन्हें रहना सी, जिथे और रिहायशी है, सिर्फ 4 दिन की मिनिस्ट्री, 4 दिन की खिदमत। कितने दिनों की? 4। और ये बाइबल में ये तहरीरी तौर पे नहीं लिखा यीशु मसीह 5 दिसंबर को पैदा हुए, और ना ये लिखा है यीशु मसीह ने 4 दिन की खिदमत की थी। जरा अपने गणक घुमाइए ना, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं, पढ़िए 4 अंजील को, आपको पता चलेगा कि कहां कहां पर क्या लिखा है। तो ये 4 दिन बनते हैं। तो आप देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह सिर्फ 4 दिन की खिदमत थी। मशरिक से कहां आ रहा है? खुदा की तरफ, खुदा की हैकल मुकद्दसा की तरफ। मशरिक से एंटर हुआ, आते 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 वो देख के क्यों रो रहा है? मशरिक के गेट से वो देख के रो रहा है उसको, आदम ये तो निकलिया बाहर हो गया, कायन ने भी ऐसे कत्ल किया बाहर हो गया, नमरूद ने भी आके तबाही मचाई, इज़राइल की किताब च कौम बनी इसराइल ने भी बेड़े गर्क कीते। मैं इन्होंने पहले तमसील दे चुकिया, हुण मैं उत्थे चलना, मैं इन्हां सारे दे गुनाहां नूं चीरदे हुए जाना उत्थे। वो इसलिए रो पड़ा। बाइबल मुकद्दस में 2 जगह लिखा है खुदा ठाठे मार मार के रोया। खुदा यीशु मसीह थाड़े मार मार के रोया। एक ते हो गई है, तो दूजी एक तो हो गई है जब उसे पता चला, उसके सारा क्लाइमैक्स उसके जहन में आ गया कि आदम भी ऐसे ही था, कायन भी ऐसे ही था, नमरूद भी ऐसे ही था, कौम बनी इसराइल भी ऐसे थी। सामरी ने अच्छा किया, लेकिन मेरे लावी और मेरे कायन भी ऐसे ही। अब पीछे बचा कौन है? मैं। अब मैं इनके गुनाहों को रिस्टोर करता जा रहा हूं, इनके गुनाहों को मैं खत्म करता जा रहा हूं। अब वो समझे गुनाह की जड़ में आ गया। अब इसको इसने चीरते हुए निकलना है, गुनाह को खत्म करते हुए निकलना है, और रोना ही निकल गया।
गए यरूशलेम है यरूशलेम, तू जो नबियों की कातिल है। मैंने हजारों हजार बार चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों तले छुपाती है, मैं तुझे अपने परों तले छुपाऊं, लेकिन तूने ही ना चाहा। देख अब तू मुझे भी मारेगी, देख अब तू मुझे भी मारेगी। तो अजीजों, जब आप देखते हैं कि देख अब तू मुझे ही मारेगी, अब जब वो इंटर होते हैं तो रोना भी नाल नाल निकली आ रहे। जाती उन्हें एक आदमी नजर आता है जो दरख्त पर चढ़ा होता है, जानते ही सारे गुनाह खत्म कर दिया जा रहे हैं। जकाई जो सुगर है विकास कोई नहीं, जकाई छोटे का जो जकाई गूलर के पहाड़ पर चढ़ा होता है, जाते ही वहां पे शिफाएं देना शुरू, खत्म सारे गुनाह खत्म करते हुए जाता है और सीधा हैकल मुकद्दसा के अंदर। मशरिक के जितने गुनाह थे यीशु मसीह ने सारे खत्म किए। इवन जब वो पैदा हुए, आखिरी बार जब वो पैदा हुए तो 3 कौन आए थे जो उन्हें सिजदा करने के लिए आए? कितने थे? 3 थे। कई मजूसी थे। कितने थे? मजूसी कई थे। इनामात के गिफ्ट 3 थे। मजूसी कई थे। और वो कहां से आए थे? मशरिक की तरफ। आपको समझ आ रही है? इंसान गुनाह करता हुआ मशरिक की तरफ जा रहा है। मशरिक के जितने भी बड़े सूरमा कहलाते हैं आके यीशु के कदमों में आके झुके जब वो पैदा ही हुआ। आज जरा सब कुछ चीरदा होएगा, आज जरा सारे गुनाह माफ कर जाएगा, ऐ जिन्हें कफारा देना दे, ऐ जिन्हें बारे चल गई और नसक बानी देगा कि वो देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। ऐ जो वो आपको बता रहा है कि हाँ ये ताज हम इसको पहना रहे कि ये बादशाहों का बादशाह होगा। हाँ हम इसको देखे लुबान दे रहे कि ये मरेगा। हाँ हम इसके लिए मुर ला रहे कि इसकी मौत जो है वो हम सबों के लिए बाइस से बरकत होगी, हम सबों के लिए कफारा होगा। लुबान हमारी दुआएं ये सुनेगा, हमारे काम ये करेगा। आपको वो सभी शुरू ही से अंजाम की खबरें मिल रही थी। जिंदा खुदा ने आपको मशरिक बता दिया। पैदाइश 3 बाब में आगे पढ़ते जाएंगे, 4थे बाब में काइन आएगा वो भी मशरिक, 11वें बाब में नमरूद आएगा वो भी मशरिक। लेकिन यीशु मसीह खुदा का बेटा जो है सारे गुनाहों को खत्म करता हुआ आके हमारे लिए अपनी जान देता है। और अजली बर्रा जिसके कुर्ते हमारे माँ बाप ने पहने हैं, आज जब उस पर ईमान लाते हैं तो हम भी उसकी रूह को पहन लेते हैं। हालेलुया। तो जिंदा खुदा बाप के लिए एक बार जोरदार ताली। अजीजों, आखिर में कलाम खुदा के लिए दुआ कोई भी भाइयों में से कर सकता है जिसको खुदा का रूह भाता है। जय मसीह।